Hi friends, how are you? I hope you are fine and you are taking immense interest in the topics I am taking for you. My YouTube channel is aimed at enhancing your knowledge or updating your knowledge because I think English should be taught enthusiastically and fervently to the learners and the aspirants of this language who want to thrive by leaps and bounds by learning this language and whose progress has been hampered owing to the lack of knowledge of this subject. So, now what happens, dear friends, in this topic, in this subject, the grammatical portion is very complicated and very difficult. Some topics are so complicated that we can rarely find the change in it. We can rarely find a difference in some sentences, in some words, that which word will be used and which word will not be used in a particular sentence. So, while solving these problems, one thing should be kept in your mind that we should always apply your common sense. We should always apply our common sense while solving these problems because our common sense can help us achieve anything. Now, don't ever think that this is the toughest topic, this is the toughest subject of your career. Start thinking that you can solve this problem with ease. And while solving these topics, you should feel comfortable, and I will help you feel comfortable by solving some problems. So, today we are discussing a topic models. Now, models, this is a very important topic of English grammar because without using these words, our sentence will be incomplete, will be worthless, and we will find no interest in the sentences we make, we speak, we write, because these are shall, should, may, will, would, and shall, should, may, might, can, could, dare, ought to. These are very important models, and sometimes we find so problems while solving the sentences because some of them are similar and we find them similar, and we find ourselves between, we are nonplussed, and we find ourselves nonplussed, and we think which sentence, which word should be come here, which word should not be come in a particular sentence. So we start solving these problems and try to understand the first sentence. Now the first sentence tells us, I don't think I be able to go. Now what happens in this sentence? The doer is saying, वो कह रहा है कि मैं नहीं सोचता ऐसा कि मैं जो है जा पाऊंगा. तो हमको वाक्य का सॉल्यूशन करने के लिए उस वाक्य को हिंदी में पढ़ना पड़ेगा, और हिंदी में पढ़ने पर वो किस सेंस में वो वाक्य बोला जा रहा है, किस लहजे में वो वाक्य बोला जा रहा है, उस लहजे को पकड़ना बहुत ही जरूरी है. We will have to understand in which tone the sentence is made. अब ये कह रहा है पहले सेंटेंस में कि मुझे नहीं लगता है कि मैं जा पाऊंगा. In this sentence he is showing his inability to do something. कई बार अपन भी कहते हैं कि भाई मुझसे तो ये काम नहीं हो पाएगा, हम कहते हैं. तो यहाँ पर जो इस तरह कहने पर जो यहाँ पर क्या आएगा कि ये कह रहा है कि मैं नहीं जा पाऊंगा. तो यहाँ पर जो है सिंपल वो कह रहा है कि मैं ये काम नहीं कर पाऊंगा. तो इसके लिए जो है इसमें आएगा शेल का प्रयोग इसमें आएगा. आई डोंट थिंक आई शैल बी एबल टू गो, कि मैं नहीं जा पाऊंगा. आई शैल नॉट बी एबल टू गो. एंड नाउ the difference between will and shall with I, when I say I will defeat the enemy, then the will shows my volition, my determination, and
When I simply say gagegi, then the simple shall will be used because nothing, no kind of force has been used in it. I will defeat the enemy, इसमें मैं दिखा रहा हूं मेरी इच्छा शक्ति को, वलीशन और दृढ़ निश्चय को, मैं शत्रु को हरा दूंगा। और मैं कल बाजार जाऊंगा, मैं कल बाजार जाऊंगा ऐसे मैं कह रहा हूं, तो इसमें जो है वो इसमें दृढ़ इच्छा शक्ति की बात नहीं हो रही है, वो सिंपल बात कह रहा है कि मैं कल बाजार जाऊंगा, या अगले महीने मैं 20 साल का हो जाऊंगा। तो इसमें जो है गागेगी में इसमें कोई फोर्स नहीं है, कोई डिटर्मिनेशन नहीं, जो मतलब वो खुद की इच्छा शक्ति से कोई काम नहीं हो रहा है, तो वहां पर जो है सिंपल सेल ही आएगा। तो यहाँ पर ये सिंपल ही बात कह रहा है नॉर्मली कि मैं नहीं सोचता कि मैं यहाँ जा पाऊंगा, आई शेल बी एबल टू गो। शुड तो आएगा नहीं, क्योंकि शुड का मतलब होता चाहिए, मुझे नहीं लगता कि मुझे जाना चाहिए, वो भी नहीं बैठता यहाँ। तो ये सिर्फ कहना ये चाह रहा है कि मैं नहीं जा पाऊंगा। फिर दूसरा, he will he not pay unless he is compelled. Now this sentence tells us that he not pay unless he is compelled, कि वह पैसे नहीं चुकाएगा जब तक कि उसको, अनलेस मतलब जब तक कि नहीं, जब तक कि उसको मजबूर किया जाता है। कंपेल यानी मजबूर करना, मजबूर किया जाता है। कंपेल से बनता है कंपल्सन, नाउन बनता है कंपल्सन। तो ये कह रहा है कि वह नहीं चुकाएगा पैसे जब तक कि उसको मजबूर नहीं किया जाता है। तो यहां पर कहने का मतलब है कि उसकी इच्छा नहीं होगी कोई काम करने की, ही विल आएगा यहाँ पर, ही विल नॉट, क्योंकि विल जो है दर्शाता है हमारी इच्छा शक्ति, विल एक्सप्रेसेस आवर स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन एंड वलीशन, इच्छा शक्ति को दर्शाता है। तो मतलब कहने का है कि उसकी ये इच्छा शक्ति नहीं होगी, वो मतलब कि मन से कोई काम करने के लिए मजबूर नहीं हो, जो है तैयार नहीं होगा अगर उसको मजबूर नहीं किया जाए। तो इस प्रकार उसमें विल का प्रयोग आएगा। फिर इसके बाद में यू बी पंक्चुअल, कि तुमको जो है समय का एकदम पक्का ध्यान रखना चाहिए। पंक्चुअल यानी समयबद्धता का ध्यान रखना चाहिए। तो यहाँ पर चाहिए और आ रहा है पंक्चुअल के तुमको होना चाहिए, तो चाहिए के लिए यहाँ पर शुड का प्रयोग आएगा कि तुमको जो है पंक्चुअल अपने समय पर कोई काम करना चाहिए। तो यहाँ पर जो है शुड और ought to में एक बहुत ही डिफरेंस है। शुड, ought to का प्रयोग कहाँ आएगा, जहां पर हमारा जो है नैतिक कर्तव्य जहां बनता है, मॉरल ऑब्लिगेशन, when the sentence involves moral obligation, then ought to will be used. Now ought to cannot be used in this sentence because ought is always followed by to. So here to is not used, then ought will not be used here, so should here you will be used. Now look at this fourth sentence, I wish, tell me earlier. Now with strong desire, when we start a sentence with wish shows our strong desire. So wish will always be followed by would to express our strong desire. I wish you would not, you would tell me earlier. काश, इसको हिंदी में इस प्रकार कहते हैं, विश का मतलब होता है काश, काश कि तुम मुझे ये बात पहले ही कह देते। तो यहाँ पर विश के साथ में हमेशा वुड का प्रयोग ही आएगा टू एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग डिजायर। और असिस्ट यू, नाउ व्हाट हैपेंस, कि क्या मैं आपकी सहायता करूं। तो यहाँ पर क्या होगा कि व्हेन वी यूज विल with I or shall with I, then it will be used in such a way that will expresses our volition and determination. So if I tell the students that I will teach you a lesson, then it shows my strong desire, my determination, my volition. And if I ask for their advice, that if they are interested in the study or not, then I ask them, shall I teach now, shall I teach you, कि क्या मैं आज आपको पढ़ाऊं। तो यहाँ पर मैं आपको पढ़ाऊंगा, तो आई विल टीच यू, उसमें वलीशन आ रहा है, इच्छा शक्ति,
और क्या मैं आपको आज पढ़ाऊंगा, मतलब इसमें जो है इन दिस सेंटेंस इन्वॉल्व्स द एडवाइस ऑफ द लर्नर्स ऑल्सो, सो इन दैट वे shall will be used in a that manner, shall. So shall I assist you, तो यहाँ पर shall का प्रयोग आएगा। और कि क्या मैं आपकी सहायता करूं, तो उसमें जो है विल में तो मतलब क्या है कि इच्छा शक्ति दर्शाता है कि मैं आपकी सहायता करूंगा ही, आई विल असिस्ट यू, तो उसमें तो विल आ जाएगा। लेकिन आप पूछ रहे हैं अगले को क्या मैं आपकी सहायता करूं, तो पूछने के लिए हमेशा उसमें shall का प्रयोग उसमें आ जाएगा। फिर वुड प्लीज हेल्प मी विद योर काइंड वर्ड्स, कि क्या आप अपने अच्छे शब्दों से मेरी सहायता करेंगे, तो पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए हमेशा वुड का प्रयोग आता है। वुड पोलाइट रिक्वेस्ट, विनम्र प्रार्थना के लिए। तो वुड यू प्लीज हेल्प मी विद योर काइंड वर्ड्स, कि क्या आप मेरी सहायता करेंगे अपने अच्छे शब्दों से। नाउ shall will not be used here because he is making a polite request in this sentence. So you will have to understand the sense of a sentence, that in which sense the sentence is written. That is the most important. Now you pay your debts, कि तुमको अपना बकाया चुकाना चाहिए, डेट्स यानी बकाया, उधारी। So you, now should we used here should, we did not use here ought because to was not written here. Now look, to is written here, so ought will be used automatically because ought to is a combination. So you ought to pay your debts. Here should will not be used because to has been used here. So ought and to are combined words, so they are used together. Now what happens? He said I use his telephone at any time. He said I might use his telephone any time. He said, उसने कहा कि मैं उसका जो है मोबाइल, उसका फोन काम में ले सकता हूं किसी भी समय। तो यहाँ पर जो है मे मीन्स किसी को परमिशन देना, और परमिशन लेने के लिए मे का प्रयोग आता है। तो मे का प्रयोग परमिशन देने और परमिशन लेने के लिए आता है, तो इसमें माइट जो है पास्ट में आ गया। ही सेड, उसने कहा कि मैं उसका जो है फोन काम में ले सकता था किसी भी समय। आई माइट यूज हिज टेलीफोन एट एनी टाइम। शैल नाउ शो मी द वे टू द स्टेशन, कि क्या आप मुझको, अब यहां पर ये वाक्य क्या कर रहा है, द सेंस ऑफ दिस सेंटेंस इज, कि क्या आप मुझको स्टेशन तक पहुंचने का रास्ता बता सकते हो। मतलब कि क्या अगला व्यक्ति, इफ द पर्सन इज इन पोजिशन टू टेल अस द वे ऑफ ए डेस्टिन्ड प्लेस। नाउ इन दैट ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस सेंस, कि क्या वो उस स्थिति में है कि हमको कुछ चीज बताने की स्थिति में है कि नहीं। तो हम उसको ये पूछेंगे क्या आप मुझको वो रास्ता बता सकते हो या नहीं। तो सकते हैं बोलते हैं, तो सकना हमेशा में कैन या कुड का प्रयोग ही आता है। Could you show me the way to the station? Way to the station. Another cup of coffee. तो यहां पर ये फिर पोलाइट रिक्वेस्ट है, क्या आप एक और कप कॉफी लेंगे। तो would you like another cup of coffee? Because polite request has been made here. polite request के साथ में would का प्रयोग ही आता है। तो यहाँ पर should नहीं आएगा। शुड में तो जो है पूछ रहे हैं किसी को कि क्या आपको ऐसा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, सिंपली। कुड में क्या आप सकते हो, ले सकते हो, ऐसा भी नहीं होता। कोई हमारे घर मेहमान आया हुआ है तो हम उसको रिक्वेस्ट के रूप में ही कहेंगे कि क्या आप एक और कप कॉफी लेंगे। तो वुड पोलाइट रिक्वेस्ट। आई विश, नाउ आई हैड ऑलरेडी टोल्ड यू दैट विश इज ऑलवेज फॉलोड बाय वुड, सो आई विश ही वुड नॉट प्ले हिज रेडियो सो लाउडली। काश वो अपना रेडियो इतना जोर से नहीं बजाता। काश का प्रयोग यहां पर आ रहा है। नो ही बट आई शुड बी सरप्राइज्ड। अब इसमें जो है ही माइट कम बट आई शुड बी सरप्राइज्ड, कि वो शायद यहाँ आ सकता है। ही माइट कम बट आई शुड बी सरप्राइज्ड, कि मे से भी मे का प्रयोग होता है किसी संभावना दर्शाने के लिए। मे शोज पॉसिबिलिटी दैट ही मे कम,
अगर किसी की हम संभावना बता रहे हैं कि वो आ सकता है शायद यहाँ, ही मे कम, और उसके आने की संभावना और भी कम है, तो उसको हम लिए मे का प्रयोग नहीं करेंगे, उसके लिए माइट का प्रयोग करेंगे, ही माइट कम टुडे। तो इस प्रकार, नाउ सपोज देयर आर क्लाउड्स इन द स्काई, देन वी विल से इट मे रेन नाउ, because there are clouds in the sky, and if there is a humidity in the atmosphere, then we say it might rain today, because the possibility is lesser than may, because in May the clouds are there hanging over us, and in might the clouds are not there in the sky, but humidity is there, and if we are finding humidity, then we can speculate that it might rain today. So he might come, but I should be surprised. Now how did we use might here? Because I should be surprised, कि मुझे बहुत ही आश्चर्य होगा। तो आश्चर्य होगा मतलब कि वो शायद आ सकता है, अगर वो एकदम आ जाए, अगर संभावना बन जाए तो मुझे बहुत ही आश्चर्य होगा, तो यह माइट का प्रयोग आया है। दिस इज द सेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग अ सेंटेंस। नाउ ही नीड नॉट he asked me for a rise for fear of losing his job। अब इसमें देखिए, he, अब now try to understand this sentence, he not ask for a rise, कि वो बढ़ोतरी की बात नहीं करेगा। बढ़ोतरी means rise means this is the matter of a payment or salary of an employee, so he will not ask for a rise for fear of losing his job, क्योंकि अगर वो पैसे बढ़ाने की बात करेगा अपनी कंपनी में, कहीं फैक्ट्री में, तो उसकी नौकरी चली जा सकती है। तो यहाँ पर एक शब्द जो है डेयर, डेयर का मतलब यह है हिम्मत करना। डेयर नीड वुड तो प्रयोग आएगा नहीं। ही डेयर नॉट आस्क फॉर राइज फॉर फियर ऑफ लूजिंग हिज जॉब, कि वह, उसकी हिम्मत नहीं होगी आस्क फॉर राइज फॉर फियर ऑफ लूजिंग हिज जॉब, क्योंकि उसका जो है नौकरी जा सकती है। तो मतलब नौकरी जा सकती है, तो इसलिए उसकी हिम्मत नहीं होगी, इस प्रकार। तो अब देखिए, नाउ लुक एट द फ्रेंड्स, नाउ आई हैव रिटन हियर टू वर्ड्स, टू सेंटेंसेस, यू कैन गो नाउ, यू मे गो नाउ। नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू सेंटेंसेस? नाउ दीज टू सेंटेंसेस, व्हेन यू रीड दीज टू सेंटेंसेस, देन दे हैव डिफरेंट मीनिंग्स। एक तो कैन एंड मे बोथ एक्सप्रेस पॉसिबिलिटी एंड परमिशन, परमिशन लेने और देने के लिए कैन और मे दोनों का प्रयोग आ सकता है। लेकिन कहने का मतलब यह है कि कोई अधिकारी है और वो कहे कि अपने किसी एम्प्लॉय को कहे कि यू कैन गो नाउ, कि तुम अब जा सकते हो। तो यहाँ पर जो है वो कहने का मतलब यह है कि ये वो एम्प्लॉय को कह रहा है अधिकारी का, आप तुम अब जा सकते हो। तो मतलब कि वो परमिशन दे रहा है, मतलब एम्प्लॉय को एक तरह से ऑर्डर के रूप में परमिशन है कि आप तुम जा सकते हो, और उसमें यू मे गो नाउ। और कोई अपना जो है, कोई मित्र आया हुआ है अपने घर पे, और उसको अपन यूं कहें कि हाँ भाई अब आप तुम चाहो तो भली जा सकते हो। तो यहाँ पर जो है वो ये रिक्वेस्ट ज्यादा जो है ये पोलाइट रिक्वेस्ट के रूप में जो है बोली जा रही है, और इसमें जो है थोड़ा ऑर्डर भी इसमें सम्मिलित है, यू कैन गो नाउ एंड यू मे गो नाउ दोनों में। तो इस प्रकार इन दोनों में ये फर्क होता है। थैंक यू।